Hello everyone, let's start our today's class. We all were trying to learn about polynomials. In polynomials, we all had learned about finding of zeros or roots for quadratic polynomial and for cubic polynomial. There we all had seen a relationship among zeros and coefficient. Now, okay, so we all were trying to solve exercise 2.2. In exercise 2.2, we all had completed type 1, very short answer type questions we all had completed. Now let us see another questions in type 2. So in type 2, we have different types of questions. In type 2, maximum questions are given using division algorithm. So let us learn about what is division algorithm to find our zeros or factors. So before starting our division algorithm, first I would like to tell you some basics. So if we have 263 and this is divided by 4, तो डिवाइड करने पे क्वेश्चन की वैल्यू हम लोग को 65 आएगी एंड रिमाइंडर वैल्यू 3 आएगी. ये कैसे आती है, हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं. देखिए ये पूरी वैल्यू ऐसे बस नॉर्मल डिवीजन ही है. इसमें हियर वी हैव quotient 65 and remainder 3. Now in a similar way if we are taking our polynomial, अगर इसी तरीके से हम लोग polynomial लेते हैं, so first polynomial is 3x square plus x minus 1. So this is divided by x plus 1. एक दूसरे polynomial से divide हो रहा है. So we have to find here quotient and remainder. So let's divide here. So we can divide it. We have here 3x square plus x minus 1. In the form of divisor, we have here x plus 1. So we'll write here 3x. Then our next number will be 3x square plus 3x. Now subtract here. So we get here minus of 2x. Then putting here next value minus 1. Now if we are taking it minus 2 times, so it will become minus 2x minus 2. So subtract here. So at this time we are getting remainder 0. So it means that if we are comparing these two things, so first वाला division क्या है? First वाला division एक constant वाले हैं, और जो second वाला division है, second वाला division ये आपके polynomials का division है. तो थोड़ा एक कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे. तो here 65 is quotient. It means जो डिवाइड करने वैल्यू आती है उसको हम लोग quotient बोलते हैं. And in a similar way, if we are comparing in polynomial, so we are getting here 3x minus 2 as a quotient. I have represented here, this is by q. So in polynomials we have to represent it qx. X क्या शो कर रहा है? x ये शो कर रहा है कि we have a polynomial where variables are x. जैसे इसमें 3x minus 2 है, ये एक polynomial है, इसमें variable x है, तो qx means ये मीनिंग हो गई. Now 263 is dividend. In a similar way, जिस चीज को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोल रहे हैं. So we can say that 3x square plus x minus 1. This is also dividend. 263 I am representing it by p. इसको हम p से डिनोट कर रहे हैं. तो in a similar way we can represent in our polynomial as px. Why? Because here our dividend is given in the form of x. So here p is showing that polynomial and x is showing that variables used here are in the form of x. Now 4 is known as divisor in our constant term. 4 means जिससे हम लोग divide कर रहे हैं. In a similar way, in the case of polynomial, we are dividing by x plus 1. So x plus 1 is divisor here. So if we are representing divisor as g, so in polynomial we can represent our divisor as gx. जिसमें x क्या शो करेगा कि x ये शो करेगा divisor is given in the form of polynomial and where variable is x. 3 at last we get here remainder. So in constant term we have here 3 as a remainder, and in the term of and in polynomial we have here 1 as remainder. So if remainder is represented by r in constant term, so in the form of polynomial we can represent remainder as rx.
आर एक्स मीन्स कि जो रिमाइंडर आएगा पॉलिनोमियल में पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो, और जब रिमाइंडर की वैल्यू स्मॉल हो जाती है डिवाइजर से तो हम लोग डिवीजन करना वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। इन अ सिमिलर वे व्हेन वी डिवाइड आवर पॉलिनोमियल, तो उस केस में क्या करते हैं कि जब रिमाइंडर की डिग्री स्मॉल हो जाए डिग्री ऑफ डिवाइजर से, तो इसमें हम लोग डिग्री देखते हैं पॉलिनोमियल के केस में कि अगर डिवाइजर की डिग्री ग्रेटर है और रिमाइंडर की डिग्री स्मॉल हो गई है तो वहाँ पे हम लोग डिवीजन करना रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और उतने पे ही हम लोग अपना फाइंड कर लेते हैं कि दैट इज रिमाइंडर एंड दैट इज क्वोशिएंट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये कंपेयर करके देखते हैं तो इजीली समझ में आता है। जब चलिए इसको आगे राइट करने की कोशिश करते हैं। इफ वी आर गोइंग टू राइट दीज वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हम लोगों ने डिवाइड किया है 263/4, तो अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो कैसे राइट करेंगे? 263 ये बीच वाली जो वैल्यू आती है इसको हम लोग राइट करेंगे 65 होल 3/4। 65 क्या है? 65 हियर इज क्वोशिएंट, 3 is remainder and 4 is divisor. So this value will be equal to the dividend. P क्या है? P is a dividend. तो हम लोगों ने सिर्फ इसको ऐसे अरेंज करने की कोशिश किया। तो this is in the form of mixed fraction. Now, if we have to represent this P in the form of Q, R, and G, Q means quotient, remainder, and divisor. So we can write here P equal to G into Q और प्लस आर। जैसे हम लोग पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग वैल्यूज फाइंड करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। डिवाइड करने जो वैल्यू है तो कैसे डिवाइड करते हैं? जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उसमें अपने रिमाइंडर को ऐड करते हैं। इफ दैट वैल्यू इज कमिंग ये डिविडेंड वाली वैल्यू, सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज करेक्ट। वही सेम फिनोमेना यहाँ हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर मल्टीप्लाइंग आवर डिवाइजर बाय क्वोशिएंट। डिवाइजर को हमने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया, देन वी आर एडिंग रिमाइंडर हियर। हम लोग रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आनी चाहिए डिविडेंड के इक्वल ही। तो ये तो एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग अपने लास्ट क्लास में छोटे क्लास में भी पढ़े हुए हैं। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे इन पॉलिनोमियल। तो बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना ही, जहाँ पे p है वहाँ पे आपको px लिखना है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होंगे। जहाँ पे g है वहाँ पे आप gx लिखेंगे, बिकॉज डिवाइजर भी हम लोग का एक पॉलिनोमियल का ही फॉर्म में होगा। सिमिलर पे जहाँ पे q है वहाँ आपको qx लिखना है। qx मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, ठीक है। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं तो ये बन रहा है। प्लस r मीन्स रिमाइंडर, तो हम लोग rx से अब यहाँ पे राइट करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग या फिर व्हेन वी आर डिवाइडिंग आवर पॉलिनोमियल्स। rx मीन्स रिमाइंडर हमारा x के फॉर्म में आ सकता है। सो दीज आर दी सम बेसिक्स, ये हम लोग के कुछ बेसिक्स हैं। तो अब हम लोग इस टाइम क्या करेंगे कि इसी चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो इट मीन्स हम लोगों ने क्या किया है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx, जब px की वैल्यू gx से डिवाइड हुई है तो क्वेश्चन हम लोग का qx आया है एंड हियर रिमाइंडर इज rx, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ होगी जो ये हम लोग को पता होना चाहिए। अब इसी सेम फिनोमिना का हम लोग यूज़ करेंगे अपने आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें। एंड ऑल्सो ये जो है ये वैल्यू कौन सी? ये वैल्यू हम लोग की है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेट अस टेक मूविंग फॉरवर्ड। इफ वी आर रिमूविंग रिमाइंडर, अगर हम रिमाइंडर को रिमूव करते हैं, रिमूव करने की मीनिंग क्या है? रिमूव करने की मीनिंग ये है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो रिमाइंडर वैल्यू 0 कब आएगी? अभी जो हम लोगों ने जस्ट एग्जांपल लिया है उसमें रिमाइंडर 3 आ रहा था। तो इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस 3 फ्रॉम डिविडेंड, अगर डिविडेंड से हम लोग पहले ही 3 हटा दें तो सिंपल सी बात है, डिवाइड करने पे फिर रिमाइंडर 0 बचेगा नहीं क्योंकि 3 ऑलरेडी ही गैप कर दिया है। इट मीन्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग 263 फ्रॉम 3, वी आर गेटिंग है 260। सो जब हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे 4 से, देखिए रिमाइंडर वैल्यू हम लोग की लास्ट में 0 ही आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स दैट मीनिंग हमारी ये है बोलने की कि हम लोग की वैल्यू यहाँ रिमाइंडर की 0 आ रही है। सो नाउ वी कैन राइट हियर आवर नंबर इन दिस मैनर 4 into 65, डिवाइजर और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइम पे ये वैल्यू हम लोग की 260 आएगी। इट मीन्स डिविडेंड के इक्वल आएगी।
है ना। अब यहाँ पे प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत तो है नहीं, बिकॉज हियर रिमाइंडर इज 0, तो इट मीन्स वी हैव रिटन हियर 260 इक्वल टू 4 into 65। हियर 4 and 65 आर नोन एज फैक्टर्स। 4 and 65 को हम लोग बोलते हैं कि दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 260, या फिर इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 260 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 65। 4 and 65 का मल्टीपल है। तो हम लोग को फोकस शिफ्ट करना है फैक्टर्स पे, ठीक है। तो फैक्टर्स मीन्स ये हम लोग के वो नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आती है। तो अगर ऐसे इन जनरल टर्म हम पूछें कि 260 के ऑल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो जो हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं उससे अगर फाइंड करेंगे देन वी कैन राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 260। जैसे सिंपली यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है ऑल फैक्टर्स ऑफ 260 कौन कौन से आएंगे, 2, 5, 13, 4, 10, 26, 65, 60 and 1। So this is the factors of 260। ये 260 के फैक्टर्स हैं। अब फैक्टर्स हम लोगों ने देखा तो इसमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर की मीनिंग क्या है। फैक्टर की मीनिंग ये है कि जो भी ये नंबर हम लोग के रिटर्न है, अगर हम इस नंबर से 260 को डिवाइड करें, डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। जैसे अभी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिखा 260 को डिवाइड किया है 4 से, तो रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। इट मीन्स 4 इज द फैक्टर ऑफ 260। वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है। तो इसमें जो हम लोग का पर्पज अभी पढ़ने का ये सिर्फ इतना ही है कि हम लोग समझ लें कि फैक्टर क्या होता है। तो द मीनिंग ऑफ द फैक्टर इज, दिस इज अ टर्म, एक टर्म होता है या फिर एक नंबर होता है व्हेन डिवाइड्स अ मल्टीपल, या फिर एक अनदर नंबर, कोई एक नंबर हो वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 दे दे, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट नंबर इज द फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर दूसरे डिविडेंड का फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर क्या होते हैं। नाउ अब जब भी हम लोग के पास कोई क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि हमें चेक करना है कि इज इट द फैक्टर ऑफ अदर नंबर या फिर अदर पॉलिनोमियल और नॉट, तो फैक्टर के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जैसे कि ये हम लोग ने एग्जांपल लिया था कि पुदीना हम लोग जब भी देखते हैं तो हम लोग के माइंड में क्या आता है कि दिस इज अ मेडिसिन टू क्योर आर स्टमक पेन। स्टमक पेन को सही करने के लिए आता है, दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है। तो इन सिमिलर में जब भी वर्ड फैक्टर यूज होगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि फैक्टर मीन्स ये वो नंबर है जिसकी हेल्प लेकर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो इसी केस को हम लोग अगर इससे पॉलिनोमियल से कोरिलेट करते हैं तो px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये होते ही हम लोग की वैल्यूज। नाउ इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर बोला जाए कि gx ये px का फैक्टर है तो इट मीन्स दैट रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। सो वी कैन राइट हियर rx इक्वल टू 0, ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा px इक्वल टू gx इंटू qx। तो ये तो हो गई फैक्टर की बात। अब इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। सो द थिंग वी हैव लर्न राइट नाउ, वी हैव आई एम कोरिलेटिंग that concept in question number 20. In question number 20, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial. हम लोग क्या करना है, चेक करना है कि क्या जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर, फर्स्ट पॉलिनोमियल वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का। तो यहाँ देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल gx की है, gx की वैल्यू x² - 3, तो ये बताना है क्या ये फैक्टर है इस सेकंड वाले पॉलिनोमियल का। सेकंड वाले पॉलिनोमियल यहाँ हम लोगों ने fx से डिनोट किया है बाई अप्लाइंग दी डिवीजन एल्गोरिथम। हमें डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो जब वैल्यू आएगी फैक्टर की, जब कोई पूछेगा ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग के माइंड में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। माइंड में तुरंत आना चाहिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए डिवाइड करने पे। तो अगर हम लोग डिवाइड करें fx को by gx, if remainder is 0, so we can say that yes, gx is a factor of fx. So let us solve this question। और फिर इसके बाद में कोशिश करेंगे अगर zeros वगैरह फाइंड हो जाएंगे तो वो भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। Now we have
fx, हम लोग पास fx की वैल्यू गिवन है, दिस इज 2 into x raised to power 4 और प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर minus 9x minus 12. This is fx and gx is also given. So I am going to write here gx. This is equal to x square minus 3. We have to check whether gx is factor or not. हमें चेक करना gx factor है या नहीं है. It means that we have to divide fx. हम लोग को fx की वैल्यू डिवाइड करनी है बाई gx हम लोग डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर की वैल्यू हो वो डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए. ठीक है, अगर 0 आएगी देन वी कैन से दैट gx is a factor of fx. इसी चीज को हम लोग चलिए चेक करते हैं डिवाइड करके. सो यूजिंग आवर डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करेंगे तो डिवाइड करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर x स्क्वायर माइनस 3. दिस इज डिवाइड, दिस विल बी यूज्ड टू डिवाइड 2x raised to power 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12. तो अब चलिए इसको डिवाइड करते हैं. हियर वी हैव x स्क्वायर और यहाँ पे 2 into x raised to power 4 है. सो किसकी कमी है? यहाँ पे कमी है 2 की और x स्क्वायर की कमी है. तो 2x स्क्वायर से व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस डिवाइजर वी गेट हियर 2x raised to power 4 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 6. 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर. ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट हियर when we are subtracting symbols get changed. So when we subtract 2x raised to power 4, 2x raised to power 4, this is cancelled out. Now we can write here we get here 3x cube. यहाँ क्या है? This is plus 6x square. ये minus 2x square. Large value is in plus, so we get our answer in plus 4x raised to power 2. Now minus 9x minus 12. Now here we have 3x cube. अभी हम लोग के पास यहाँ पे 3x cube है, यहाँ पे x square है. तो किस चीज की कमी है? यहाँ हम लोग के पास कमी है plus 3x की. So when 3x is multiplied by x square minus 3, we get here 3x cube and 3 3s are 9. So minus 9x. Now subtract here. Symbols will change. So when we have subtracted here, this and this 3x cube will be cancelled out. Now देखिए यहाँ पे माइनस का 9x है और ये प्लस का 9x है. This will also be cancelled out. So we get here 4x square ये वाली वैल्यू और माइनस 12 ये वाली वैल्यू. Now अब फिर से लिखते हैं क्वेश्चन में वैल्यू. Here is 4x square and here is x square. तो किसकी कमी है? 4 की कमी है. So it means we can write here plus 4. तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को x स्क्वायर माइनस 3 से, we get here 4x square और क्या 4 3 is 12 तो minus 12. Now subtract here, this is minus and this is plus. So when we are subtracting here, we are getting 4x square और ये 4x square कट करके 0 आ गया. Similarly यहाँ पे ये माइनस का 12 ये प्लस का 12 ये भी कट करके 0 आ गया. So it means now here our remainder is 0. अभी हम लोग का रिमाइंडर 0 आ चुका है. ठीक है, तो इस रिमाइंडर 0 को हम लोग देख करके बोल सकते हैं रिमाइंडर को हम लोग अगर rx से नोट करें तो दिस इज 0. अब इसी को हम लोग देखेंगे. हम लोग ने देखा कि रिमाइंडर 0 है तो इट मीन्स दैट वी कैन से दैट gx, therefore gx is a
फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, बस इस तरीके से हम लोगों ने अपना चेक कर लिया कि gx का फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना होती तो हम लोग कहते हैं gx इज नॉट फैक्टर। सो इतने पे हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है जितना क्वेश्चन में गिवन था। नाउ अगर इस क्वेश्चन के आगे ये भी पूछा जाए कि वी हैव टू फाइंड दी रूट्स, हम लोग को रूट्स फाइंड करने हैं ऑफ fx, तो ये कैसे फाइंड होंगे? तो ये भी अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो चलिए यहाँ पे इस साइड में हम राइट करेंगे, राइट साइड। सो नाउ अगर क्वेश्चन इसी में आगे और गिवन होता कि वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ fx, हम fx के जीरोज भी फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए पहले हम लोग इतना डिवीजन करते हैं, इतना सेम स्टेप ही रहेगा, पूरा डिवीजन हो गया। फिर डिवीजन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन कौन सा बनेगा? जो डिविडेंड इक्वल टू करके रिलेशन होता है। क्या होता है? जिसको हम लोग ने राइट किया था, डिविडेंड इक्वल टू, राइटिंग है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर की वैल्यू से राइट कर देते हैं। ये सेम फिनोमिना यहाँ पे भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर डिविडेंड वी हैव 2x raised to power 4 plus 3x cube minus 2x square minus 9x or minus 12. This will be equal to the value of divisor into quotient. So we have divisor x square minus 3 and quotient is 2x square plus 3x और plus 4। Here remainder is 0, यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, तो रिमाइंडर लिखने से कोई फायदा है नहीं। इट मीन्स ये ऐसे हो गए, देखने में हमें ये ऐसे लग रहे हैं। नाउ अब अगर हम लोग इसमें राइट साइड में कंपेयर करते हैं, राइट साइड में देखिए, इन द राइट साइड वी हैव हियर x स्क्वायर माइनस 3। ये देखिए ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में और ये वाला पार्ट ये इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में। सो वी कैन से दैट x स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर। x स्क्वायर माइनस 3 ये जो पूरा टर्म है ये एक फैक्टर है इस डिविडेंड का। In a similar way, we can say that 2x square plus 3x plus 4. This is also a factor of this dividend. So इस तरीके से हम लोग ये इसमें हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि ठीक है ये तो फैक्टर होगा। अब फैक्टर के बाद हम लोग को इसमें देखते हैं और अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर जो भी हम लोग के ये फैक्टर हैं इन फैक्टर को हम लोग 0 के इक्वल करके जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग को क्या है? फर्स्ट फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो देखते हैं कि जीरोस की वैल्यू कितनी आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 3 हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सो वी कैन राइट एक्स प्लस √3 and we can write x minus √3, this is equal to 0. now अब इसको फिर 0 के इक्वल कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आएगी। when we are putting x plus √3 equal to 0, so we get here from x equal to minus √3. so this is our first root, हम लोग का फर्स्ट रूट हो गया, अभी फर्स्ट 0। now when we are putting x minus √3 equal to 0, x minus √3 equal to 0, so from here we are getting x equal to √3। तो now we have found here 2 zeros, हम लोग का यहाँ पे 2 zeros की वैल्यूज आ गई हैं। तो फर्स्ट 0 इज x माइनस √3, सॉरी फर्स्ट 0 इज x इक्वल टू माइनस √3 एंड सेकेंड 0 इज x इक्वल टू √3। नाउ लेट अस टेक अनदर फैक्टर, एक और फैक्टर लेते हैं और उसको भी 0 को इक्वेट करके फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। ये सेकेंड फैक्टर ये वाला है, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गए हैं वैल्यूज ये वाले फैक्टर की। अब इसको 0 की इक्वल करेंगे तो देखने पे हम लोग क्या लग रहा है? दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना हम लोग को आता है, अलग अलग मेथड सीखे हुए थे जिसमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फाइंड करते थे, या फिर जो प्योर कांस्टेंट टर्म है इसके अलग फैक्टर करके फाइंड करते थे। और इन प्रीवियस क्लास वी ऑल हैड सीन डायरेक्ट फार्मूला हियर, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला भी देखा था, तो आई एम यूजिंग हियर फार्मूला डायरेक्टली। कौन सा फार्मूला देखा था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला देखा था x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। तो x इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए, वी हैव हियर माइनस b, तो b के प्लेस पे हियर वी हैव 3, सो वी कैन राइट हियर माइनस 3 देन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या है कि 9 माइनस 4ac, 4 है, a के प्लेस पे 2 है और c के प्लेस पे 4 है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 a के प्लेस पे 2 और c के प्लेस पे अगेन 4, सो अपॉन 2 इंटू a के प्लेस पे क्या है 2 है, सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट हियर माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 माइनस 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 2 टू जा 4, ठीक है। तो अब इधर स्पेस यहाँ पर इधर राइट करेंगे, व्हेन वी सॉल्व दिस, तो यहाँ पे देखिए x की हमारी दो वैल्यूज मिलेगी, एक वैल्यू क्या मिलेगी -3, एक बार हम ये प्लस वाली वैल्यू लिख लें, प्लस इन अंडर रूट वी कैन राइट 9 माइनस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 23, वो भी माइनस का 23, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, अपॉन में 4, तो ये तो हो गया फर्स्ट जीरो इसके हिसाब से। नाउ सेकंड जीरो क्या होगा -3 और माइनस में -23 अपॉन 4, तो देखिए नाउ वी ऑल हैड गेट हियर ऑल द 4 जीरोस, हम लोग को यहाँ पे सभी 4 जीरोस मिल चुके हैं। फर्स्ट वाला जीरो क्या था -√3, सेकंड जीरो है √3, थर्ड वाला आ गया ये -3 प्लस अंडर रूट -23 अपॉन 4, फोर्थ वाला आ गया 0 -3 माइनस अंडर रूट -23 अपॉन 4। सो दीज आर दी ऑल 4 zeros ऑफ fx की ये सभी 4 zeros हैं। तो इसी तरीके से हम लोग अपने ये zeros फाइंड करते हैं व्हेन वी हैव cubic polynomial or when we have quadratic polynomial. Now this is enough for today. I am going to end your class here. I hope that you all have enjoyed this class. All the best to all of you and have a nice day. Yes, sir.